सर सामने सर सामने सर So, I now invite our honorable founders of Srinath Group, Shri Sabu Mahato Sir, Mrs. Sandhya Mahato Ma'am, our honorable Chancellor, Shri Sukhdev Mahato, honorable Vice Chancellor Sir, Professor Dr. Shivanand Singh, respected Registrar Sir, Dr. Yaha Majumdar, respected Chief Guest, Mr. Dilu Parekh, our esteemed guest of honor, Mr. Dinesh Kumar Randhawa. is our university manager. May I now request Mr. Jivraj Singh Sandhu to kindly come up on stage and share a few words with us. अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. After paying my obeisance to the Guru who gave me the enlightenment and who moved from darkness to light, respected members of the trust which has founded this Srinath University, the Chancellor, Vice Chancellor, respected faculty members, and dear students. It's a matter of great privilege and an honor to stand here in front of you on the occasion of Sankhnath, that is the annual orientation program. This is not just the first day of your degree course. As they say, the journey of 1,000 miles begins with a single step. And this, my dear children, is the first step towards your career, towards your character building, and towards your service to this nation and humanity. I am told there are students from different streams: BCA, BCom, BA, engineering, pharmacy. While you have different classrooms, you have one common thing. You are going to face a world which is ever changing. And to bring to the context, this generation sitting in front of me is the Gen Z. Gen Z understands Instagram. And what is Instagram? A combination of two words. Instant, yani turant, immediate, at that moment. Instant, and good old days we used to have something called a telegram. If you have to reach fast, you used to give a telegram. So combine the two words, Insta and gram, and this is what this generation understands. So you are a generation which understands Instagram, and we are always after the likes and the posts and whatnot. If my voice is reaching you and if you agree with this description, can I have a round of applause for yourself? Absolutely. So dear parents, congratulations. You have put your wards at an institute which will not only train them for the next coming 4 years. Young friends, a degree is just one instrument or something which will enable you to enter a room or a company or a corporate. How long you will stay there and what trajectory your career will take, it will all depend on your skills, on your skill sets. And here comes the challenge. You have to build those skills in the upcoming days. It is no longer a matter of theoretical things. Your teachers are here to guide you. They have already shared the roadmap, how they are going to take you forward. So,
Another point at this junction I will bring to your notice is time management. समय का प्रबंधन. Dear friends, time management is very important. And why I say this, each and every person has only 24 hours. Be it Elon Musk, be it Bill Gates, be it the rich corporates, or be it you. किसी के पास भी भगवान ने 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं दिया है, सबको 24 घंटे दिए हैं. The question is how you use those 24 hours. आप कैसे उसका इस्तेमाल करते हो, कैसे प्रयोग करते हो, that is important. And hence I say time management is important. Now you will ask me, इसमें क्या विशेष है, आप टाइम मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? That brings me to another subject, and that is social media. Friends, social media is not bad, not at all. But चुनौती तब आती है when you get up in the morning and you have an urge to see the reels or to reach out to your account and see what is posted, how many likes I have got. The challenge comes जब आप सोने से पहले रील्स देखते हो, जगते हुए रील्स देखते हो, और हर वो 1 घंटा जो आप इस तरीके से यूज करते हो, you are taking away that 1 hour from an early 1 hour of learning. Mind you, आपके पास वही फिक्स टाइम है. आप चाहे तो सोशल मीडिया में यूज कर लीजिए, चाहे तो उसको लर्निंग में यूज कर लीजिए. You are a lucky generation, my dear children. In our age, we didn't have this internet. And that reminds me, today internet on 6th of August, they have completed 35 years. 6th of August 1991, वो कोड रिलीज हुआ था जिसको आज दुनिया नेटवर्क के नाम से जानती है. www, go and search in the Google. 35 साल ही हुए हैं इसको इंटरनेट को आए हुए. हमारे जमाने में इंटरनेट नहीं था. You have the power to connect with anybody and everybody. You have the power to reach to the right universities. कहां पे ज्ञान का खजाना है, आप उसको ढूंढ सकते हो, आप वहां तक जा सकते हो. ये चुनौती आपके हाथ में है. जब आपके हाथ में ये मोबाइल होता है तो आप इसका क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे, आपके माता पिता नहीं करेंगे. उन्होंने श्रीनाथ यूनिवर्सिटी की फीस भर दी है, उन्होंने आपको हॉस्टल में रखा है, आप घर से आएंगे, शाम को हॉस्टल में जाके रूम में आप रहेंगे, वहां आपके शिक्षक नहीं आएंगे, कोई आपको पुलिसिंग नहीं करेगा कि आप इसका इस्तेमाल क्या करते हो. और मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा. नाइफ होता है ना, चाकू, उससे आप घर में किचन में सब्जियां काटते हैं, उससे कोई क्रिमिनल है तो किसी की जान भी ले सकता है, और वही नाइफ किसी सर्जन के हाथ में है तो वो किसी का जीवन भी बचा सकता है. चीज वही है, एक चीज. आप अगर मेरी बात समझ रहे हो तो इसका समर्थन कर सकते हैं. चीज वही है, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये आपके हाथ में है. इसी से एक उदाहरण और देना चाहूंगा. न्यूक्लियर पावर, आणविक शक्ति, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी उसका इस्तेमाल होता है आइसोटोप से. न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, और दुर्भाग्य से आणविक शक्ति से हजारों लाखों लोगों का संहार भी होता है. आज ही वो तारीख है 6 अगस्त 1945, जब सुबह 8:30 बजे आज की कही जाने वाली महाशक्ति अमेरिका ने हिरोशिमा में पृथक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, जिसमें 70,000 व्यक्ति एक साथ मर गए थे. शक्ति वही है, उसका प्रयोग कौन कर रहा है और किस हाथों में हो रहा है. अगर वो दानवीय यूज है तो किसी का संहार करेगा, अगर वो सात्विक यूज है तो वो उसका संवर्धन करेगा. अब आप समझिए, और ये वही शक्ति है जो आपके हाथ में है. अब आप इसी से किसी का सत्यानाश सर्वनाश कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप अपना करेंगे. इससे आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट कर सकते हो, इससे आप अच्छे अच्छे ज्ञान के सागर में गोते लगा सकते हो, इससे आप अच्छे अच्छे एजुकेटर्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसी से डार्क नेट का यूज करके आप गर्त में जा सकते हो. तो मेरे
प्यारे बच्चों, जेन जी को कोई सुझाव नहीं दे सकता, जेन जी को कोई फोर्स नहीं कर सकता, पर हम एटलीस्ट आपको यह बता सकते हैं कि इसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं। द रोड इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप क्या चुनेंगे वो आप जानिए, आपके हाथ में है, और इसको आप कंट्रोल करेंगे। लेट सोशल मीडिया नॉट यूज यू, यू यूज द सोशल मीडिया। There are platforms like LinkedIn. You connect with industry professionals. You connect, you form a network. आप internships कीजिए. Internships can be in the factory, it can be off the site. आप learn कीजिए. 3-4 साल बाद जब भी आप कोई इंटरव्यू फेस करेंगे तो इंडस्ट्री यही पूछेगी, आपने क्या सीखा, आपने क्या किया, आप क्या जानते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी जगह है, और इसी के साथ ही चैलेंज आ रहा है AI। एक जमाना था जब लोग कहते थे मैं कंप्यूटर साइंस ले लिया, आई एम अ हीरो। कंप्यूटर साइंस की जितनी डिमांड होती थी, कोडिंग, मुझे याद है अपने बैच में जो JAVA जावा बोल देता था वो अपना वीजा बना के अमेरिका चला जाता था, और मेरे साथी आज वहां बैठे हैं। बट AI की सबसे बड़ी मार आज कंप्यूटर्स पे पड़ रही है। आपने पढ़ा होगा कोडिंग इज डन टुडे ऑटोमेटिकली बाय AI एजेंट्स on the system, and the coders are left useless. So what do we do? Look for innovation. AI को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसमें से और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, ये आपको सोचना है। नवाचार जिसे कहते हैं, innovation, be innovative. And when it comes to innovation, I'm proud to say India today leads that. It's all because of you, because of the youth. आप इनोवेट कीजिए, AI का चैलेंज भी हम पार करके बाहर उभर के आएंगे। सो कमिंग बैक, AI इज अ चैलेंज, माय यंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैलेंज इज कमिंग फ्रॉम एनवायरमेंट। यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एनवायरमेंट। हम सब प्रतिबद्ध हैं कि जैसी पृथ्वी हमें मिली है अपनी पूर्वजों से, अगर हम उससे बेहतर ना दे सके तो उससे बदतर भी ना दें। लेट अस नॉट पास ऑन द अर्थ which if not better, it is not worse than what we got from our ancestors. और इसके लिए आप भी प्रतिबद्ध हैं, आप कटिबद्ध हैं, और आपको करना चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे कठोपनिषद में कहा है, कुछ काम होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं और कुछ प्रेयस होते हैं। कुछ आपको कुछ समय के बाद, कुछ कठिनताओं के बाद आपको फल देगा, और कुछ होते हैं आपको तुरंत प्लेजर देगा, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। And you will always face that challenge. You will always, every day you will face this challenge. आप देखेंगे मैं अपना काम करूं, डिसाइड करूं, या मैं कुछ और कर लूं, ये काम आगे कर सकता हूं। चॉइस आपके हाथ में आएगी। क्या मैं आज का असाइनमेंट कर लूं या आज मैं पार्टी कर लूं? पार्टी में आपको तुरंत ग्रेटिफिकेशन दिखेगा, प्लेजर दिखेगा, पर अगर आप असाइनमेंट्स नहीं किए, और ये हर दिन का डिसीजन है जो आपको मैटर करेगा। कंपनीज न सिर्फ मार्कशीट्स देखती है, न सिर्फ आपकी स्किल्स देखती हैं, पर कंपनी जो आपको चुनेगी कभी भविष्य में, वैल्यूज भी देखेगी। वैल्यूज पे बहुत महत्व दिया जाता है। कंपनी आपको तभी चुन के ले जाएगी अगर आपके वैल्यू सिस्टम में और कंपनी के वैल्यू सिस्टम में कुछ मैच दिखेगा। ये वैल्यूज क्या है? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर कैरेक्टर, दिस इज द इंटीग्रिटी विच यू डिस्प्ले, दिस इज द एथिक्स विच यू विल लर्न। एंड इन सिंपल टर्म्स, What is ethics? जो आप कहते हैं वही आप करते हैं, और जो आप करते हैं वही आप कहते हैं। There cannot be a difference between what you do and what you say. आप अगर एक चीज करते हैं और कहते दूसरी हैं, कहते कुछ है और करते कुछ और हैं, that is a dichotomy, dual. So build a character wherein you are true to your commitments, and not just commitments, friends. We need empathy. We need compassionate citizens. और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको उनके चेहरों में हंसी दिखेगी, पर किसी हंसी के पीछे कुछ दुख दर्द भी होगा, वो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आपका एक मित्र मुस्कुरा के जा रहा है, उसके पीछे कुछ छुपा हुआ उसका दुख होगा, वो समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और कई बार ऐसा होता है, कॉलेज में ग्रुप्स जब बनते हैं तो किसी को एक उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता तो उसको अच्छा नहीं लगता है। सो एक्सटेंड योर सेल्फ आउट, आउटरीच,
इंक्लूड, बी इंक्लूसिव, समाहित करिए सबको, एक टीम वर्क बना के आगे चलिए, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में भी जाएंगे तो टीम वर्क इज वेरी एसेंशियल। और ये सब आप अभी डेवलप कर सकते हैं। ये 4 साल, 5 साल, 3 साल जो भी आपके कोर्स के हैं, इसमें आप वो मित्र बना सकते हैं जो आपको जीवन पर्यंत आपके साथ चलेंगे। मित्रता यहां डेवलप हो सकती है, सच्चे मित्र। सो कमिंग बैक, और एक चीज और है, चुनौतियां रहेगी। नॉट एवरी एग्जाम विल बी सो इजी, नॉट एवरी असाइनमेंट विल बी सो इजी। आपको लगेगा ठोकरें आएंगी, पर नेवर एवर लूज योर हिम्मत, जिसे कहते हैं ना, परसिवरेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और परसिवरेंस का एक उदाहरण और है, अगर बूंद बूंद से आप देते रहोगे, गिराते रहोगे, तो इवन पत्थर में भी कटाव हो जाता है, पहाड़ों के पहाड़ कट जाते हैं समय के साथ। सो बी परसिवरेंस, नेवर एवर लूज होप। फेलियर्स विल कम, फेलियर्स आर नथिंग बट स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आप 99 बार फेल हो सकते हैं, 100 टाइम आप अवश्य पास होंगे। और जब वो 100th बार पास होता है तो यू शुड से 99 were my attempts to it. So never ever lose hope, be strong enough, choose the right, make the right choices, make the right decisions to use time productively in these years where you will spend time. Attend the classes, be regular, be punctual. All these things are fair enough, I say, but on these 3 or 4 notes you should always do, you should choose what is best for you. Okay? You make a mark of these words, go back and do it. And at the end of a semester, ask 3 questions. Have I learned something new? Have I improved as a person? Have I developed some skills? And if the answer to this is yes, आपको किसी नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी, नौकरी आपको खोज के खोजेगी कि ये बंदे को मैं ले जाता हूं। Okay? And at the end, I would conclude with a couplet what ma'am recited in the beginning, and this is the motto of where we all come from. असतो मा सतगमय, असत्य से सत्य की ओर की यात्रा। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस इज अंधेरा, अंधकार, और वहां से उजाले की ओर। उजाला किसका? ज्ञान का। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। मनुष्य की एकमात्र चाह है वो कैसे अमर हो जाए, कैसे अमर हो जाए, मरने के बाद भी उसका नाम कैसे रह जाए। और चाहे वो ट्रस्ट बनाना हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनाना हो, चाहे कुछ नाम अपने नाम करना हो, चाहे बड़े काम करना हो या कुछ भी करना हो, ये सब एक चाह है, मैं कैसे अमर हो जाऊं। और अमर तभी आप हो सकते हैं जब आप कुछ अमर होने लायक करके जाएं। बाकी तो यहां करोड़ों आते हैं और करोड़ों जाते हैं, चुनाव आपके हाथ में है। आप क्या करना चाहते हैं, कैसे अलग करना चाहते हैं और कैसे आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही मेरी शुभकामनाएं आपको कि आपका यहां का जो 4 साल का, 3 साल का जो भी कोर्स टाइम है, आप उसमें महत्वपूर्ण कार्य करते रहें, और ये करने के बाद राष्ट्र की सेवा, मानवता की सेवा, पृथ्वी की सेवा करते रहें और अपना योगदान इसमें देते रहें। जय हिंद, नमस्कार। Thank you so much for giving me this opportunity to address you guys. It's a matter of honor. Thank you. Thank you so much, sir. Your insightful words will always linger with us. I request you to kindly stay back. As a token of gratitude and respect, I request Honorable Chancellor Sir to please come on stage and felicitate Mr. Jivraj Singh Sandhu.
has been made by one of our fine arts students, Suhana Kumari. Thank you, Mr. Sandhu and Honorable Chancellor, sir. I request you both to please take your seat.